ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن کا کہنا ہے کہ حیدرآباد ضلع کے مسائل کے حل کی کاوشیں جاری ہیں جن کے مثبت نتائج جلد عوام کے سامنے ہوں گے۔ شہباز ہال حیدرآباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے کہا ہے کہ رانی باغ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے محکمہ بلدیات کے تعاون سے آپریشن کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے کہا ہے کہ ضلع حیدرآباد میں فلیگ شپ پروجیکٹ شامل ہیں۔ عبدالستار ایدی روڈ 2 پر تجاوزات کا خاتمہ اور ہیڈ برج کی تعمیر، جبکہ فیز 3 پر ابھی کام جاری ہے۔ وفاقی حکومت کے احکامات پر ہیسکو کی رینجرز کے ہمراہ بجلی چوری اور بل نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ہیرآباد میں سب ڈویژن میں 3 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ہیسکو چیف کی ہدایت پر ایس ڈی او حیدرآباد نے رینجرز کی ہمراہ بجلی چوروں اور بل نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 3 بجلی چوروں کو حراست میں لے لیا۔ کارروائی کے دوران متعدد کنڈا کنیکشن منقطع کر کے تاریں قبضے میں لے لی گئی۔ کارروائی کے دوران رینجرز اور پولیس کی نفری بھی ہمراہ تھی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکار بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میں گیس کی بندش نے بدترین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ کئی گھنٹوں گیس نہ ہونے کی وجہ سے عوام پریشان ہیں اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً عوام کو مہنگے داموں ایل پی جی گیس خریدنی پڑ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز سے رضوان شیخ سے، جو اس وقت ایک گھر میں موجود ہیں، وہ بتائیں گے ہمیں۔ جی رضوان، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے بدترین صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔ حیدرآباد کے علاقوں میں رات 9 بجے سے لے کے صبح طلوع آفتاب تک گیس کی بندش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دن میں بھی کئی گھنٹوں گیس نہیں ہوتی ہے۔ میں اس وقت لطیف آباد یونٹ نمبر 10 میں موجود ہوں، ایک گھر کے اندر، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا گیس کی صورتحال ہے۔ جی ہاں، غریب عوام بہت زیادہ ہی پریشان ہو چکی ہے اس گیس کی وجہ سے۔ نہ دن میں گیس ہوتی ہے نہ رات میں اگر 9 بجے جاتی ہے گیس تو پھر صبح فجر کے بعد ہی گیس آتی ہے، اور جب دل چاہے تو وہ دن میں بھی لے لیتے ہیں، اور جمعے کو تو دن میں ہوتی ہی نہیں ہے گیس۔ تو بتائیں غریب عوام کیا کریں؟ گیس کے بل ہی نہیں غریب عوام سے بھرے جاتے، تو بتائیں سلنڈر اتنا مہنگا کہاں سے جلائیں گے؟ کہاں سے وہ آئے دن یہ بھروا کر گیس کو استعمال کریں گے، سلنڈر کو؟ اور اس سے یہ بھی سوچیں کہ جانی نقصان کتنے ہوتے ہیں، کتنے تباہی ہو جاتی ہے، اس سے گھر خراب ہو جاتے ہیں، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو غریب عوام سے کم یہ حق تو نہ چھینا جائے کہ وہ پیٹ بھر کے بھی روٹی نہ کھا سکے۔ تو میری حکومت سندھ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را مہربانی کر اس لوڈ شیڈنگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور غریبوں پر رحم کیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے خاتون کی بات سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ رات 9 بجے سے لے کے صبح تک گیس بالکل نہیں ہوتی ہے، اور جمعرات اور جمعے کو بھی گیس کئی گھنٹوں دن میں غائب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے اسکول جانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ اور انہوں کا حکومت سندھ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے، تاکہ عوام سکون سے کھانے پینے کا بھی کام کر سکے، اور ایل پی جی سلنڈر خطرناک استعمال کرنے والی چیز ہے ایل پی جی سلنڈر، اس سے بھی بچا جا سکے۔ جی فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ فیصل آباد پولیس کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے عمر ایوب، شبلی فراز، فواد چودھری اور کنول شوذب کی گرفتاری کے وارنٹ تھانہ سول لائن میں درج مقدمے کی روشنی میں جاری کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر 9 مئی کو پولیس وین نظر آتش کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن تجاوزات سے پاک پنجاب اور ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی خصوصی ہدایت پر شکر گڑھ میں بھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ دیکھتے ہیں شکر گڑھ سے حافظ زائد معین کی یہ رپورٹ میں۔ پنجاب بھر کی طرح شکر گڑھ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن تجاوزات سے پاک پنجاب کے تحت آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ طارق محمود نے میونسپل کمیٹی کے ساتھ مل کر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، جس میں پلازے، دکانیں، گھر اور تھڑے مسمار کر دیے گئے۔ وسیع پیمانے پر تجاوزات کے خاتمے پر اسسٹنٹ کمشنر شکر گڑھ طارق محمود کا کہنا تھا کہ درمان روڈ بیسیکلی ایک بڑا بزی ایریا ہے اس شہر کا، اور لوگوں نے تجاوزات 5-5، 6-6 فٹ اور پختہ تعمیرات نہیں
आज हम उसको रिमूव कर रहे हैं। मेरे साथ रेवेन्यू का अमला मौजूद है, तहसीलदार शकरगढ़ मौजूद हैं, COMC मौजूद हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ हमें वापडा और पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है और इसका जो टोटल मकसद है वो अवाम की फलाह बहबूद है। और शकरगढ़ का अगले 2 से 3 हफ्तों में इंशाल्लाह एक नया नक्शा हम शकरगढ़ की आवाम को देंगे और जो शकरगढ़ तजावज़ात से पाक होगा और इसके रोड्स बिल्कुल खुले होंगे और लोग बिल्कुल आसानी से यहाँ मूव कर सकेंगे। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस इक़दाम को खूब सराहते हुए कहा कि जहां तजावज़ात के खात्मे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा तो वहीं शहरियों को गुजरने में भी आसानी होगी। कैमरा टीम के हमरा हाफिज जाहद, 5 न्यूज़, शकरगढ़। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार की जानिब से तहसील ऑफिस में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नंबरदारों को अपने अपने इलाके में कानूनी और समाजी मामलात में मुआवनत फराहम करना था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असफंद यार ने हल्का के जो नंबरदार हैं उनके साथ एक मीटिंग की है। मुख्तलिफ अमूर पर उनके साथ तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर से। जी सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। ये एक रेगुलर इंटरेक्शन जो है इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि नंबरदार जो हैं वो हमारे माशरे की जो गवर्नमेंट है उसकी कान आँख और नाक हैं और एक मुस्तर बाजू हैं जो कि हमें हमारे जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स हैं या जो एक लोकली हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है उसमें बड़ा मुसर साबित होते हैं। तो आज का इंटरेक्शन भी इसलिए था कि रेवेन्यू रिकवरीज को किस तरह से हम इन्हांस कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे जो इंटरेक्शंस हैं जहाँ पे नंबरदारान के मसाइल भी हल किए जा सकें और गवर्नमेंट को भी साइड बाई साइड नंबरदारान किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इस सिलसिले में इंटरेक्शन था। इंशाल्लाह ये गायब बगैर जारी रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक गवर्नमेंट का और लोकल पब्लिक का जो बेनिफिट है उसको इन्हांस किया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर असफंद यार का यह कहना है कि आज के इजलास का मकसद कि जो मसाइल हैं उनका मिलजुल कर हल तलाश करना है। जी, पाकपतन को तजावुजात से पाक करने के लिए इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। भारी मशीनरी के जरिए अंदरूनी शहर पुख्ता तामीरात को गिराया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सज्जाद। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर पाकपतन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतजामिया की तरफ से नाजायज पुख्ता तामीरात को गिराकर सड़कों को कुशादा बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक का कहना है कि किसी भी हदूद से तजावुज करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो हमने नाजायज तजावुजात को रिमूव करने के लिए मुहिम स्टार्ट की हुई है वो इस पूरा वीक जारी रहेगी। टिल सैटरडे हम इंशाल्लाह पूरे ज़िले पाकपतन को नाजायज तजावुजात चाहे वो कच्ची हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट, उसे रिमूव कर देंगे। काम स्टार्ट हो चुका है पिछले हफ्ते से। लोगों की तरफ से हमें कई जगहों पे रेजिस्टेंस फेस हो रही है तो कई जगहों पे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है जो कि खुद अपने तजावुजात को अपनी हदूद में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है वो उस पर रखने को तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन है कि पूरा पंजाब में अक्रॉस दी बोर्ड ये तजावुजात को रिमूव करने की मुहिम शुरू की जाए और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। म्यूनसिपल कमेटी का अमला भारी मशीनरी के जरिए तजावुजात को हटवा रहा है। ऑपरेशन से जहां सड़कें और बाजार कुशादा होंगे वहीं ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होगी। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। शहरी बिलबिला उठे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से नुमाइंदे हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। जी हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, अगर इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल इसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है। 250-300% तक यहाँ पर इजाफा हो गया है। मैं एक निजी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ये कस्टमर भी कुछ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। वो अद्वियात लेने के लिए आए हैं और कीमतों के हवाले से वो क्या कहेंगे। सर, आप बताएं कि आप यहाँ पर अद्वियात लेने के लिए आए हैं, क्या कीमतें कम हैं, ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मीडिया का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आते हैं और गरीबों की आवाज़ बनते हैं। सर, मेरी वालदा बीमार है। ये शरबत 676 रुपये का था 3 दिन पहले और आज मैं इसे लेने आया हूँ, ये 876 रुपये हो गया। सर हमारा तो मरना ही, सर पाकिस्तान में सर मर गए हैं। सर 1500 की दिहाड़ी लगा के आया हूँ मैं। सर 800 का ये शरबत ले लिया है।
सर ये 200 की गोली ले लिया सर, मैं अब घर क्या लेके जाऊं? हम सर मर गए सर, हमने तो मार दिया इन्होंने सर, ये जो हुक्मरान बैठे इन्होंने मार दिया हमें सर। ये 300 रुपये सर इजाफा हुआ सर, हम किधर से लेके आए? यहाँ तो मरना भी ऐसे ही बन गया कि जैसे पैसे होंगे तो मरना, पैसे नहीं होंगे तो नहीं मरना। बीमार है हम क्या करें सर, किधर जाएं हम? ये देखें सर जी, मैं 1500 की दिहाड़ी लगा के सर मैं इधर दे के जा रहा हूँ, मैं घर क्या लेके जाऊँ सर? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर गरीब आदमी की बात सुनी, उनके तासरात देखे कि वो कितने मजबूर हो चुके हैं महंगाई की वजह से। और मेरे साथ इस वक्त निजी जो यहाँ पर जो मेडिकल स्टोर है उसके मालिक भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात। सर आप बताएं कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं और आपकी सेल में कमी आई है या क्या हुआ है, ये भी बताएं। बिल्कुल, कीमतें बढ़ने के साथ ही सेल में कमी तो ज़ाहिर बात है आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। कंपनी का जैसे दिल चाहता है वो रेट बढ़ा रही है, ये नहीं कि वो 15% बढ़ा रही है, 20% बढ़ा रही है, लेकिन 300% बढ़ा रही है। मगर अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे भाई लास्ट टाइम 2 या 3 दिन पहले आए थे, उन्होंने ये सिरप पूछा था, ये था 676 का, लेकिन 876 का, यानी कि 200 रेट बढ़ गया इसका। इसी तरह ये टैबलेट है, कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा जूम कीजिएगा, ये स्टेमिटल टैबलेट है, इसकी जो थी ये न्यू प्राइस देके 900 आ गई है। और ये स्टेमिटल जो मुझे 15 डेज आई है पहले, उसकी देखिए अब चेक करें, इसकी प्राइस है 390 और इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, आप देख सकते हैं अप्रैल 2024 और इसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है जून 2024, यानी कि 1 माह के दौरान इसका रेट देख लें 300% रेट बढ़ा है। हम क्या कर सकते हैं बताएं? हमें जिस हिसाब से कंपनी दे रही है फिर भी हम उससे कंसेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मेडिकल स्टोर के मालिक की भी बात सुनी, उनका कहना है कि बिल्कुल 400 से 500 रुपए फी डब्बी रेट बढ़ चुका है, 300% रेट बढ़ चुके हैं, इससे जायद भी रेट बढ़ चुके हैं। हमारी सेल भी बहुत कम चुकी है, हम क्या करें? हुकूमत से मुतालबा करते हैं, गाहक का भी और ये मेडिकल स्टोर मालिक का भी इन पर तवज्जो दी जाए और मेडिकल स्टोर की जो अद्वियात है इंसानी जिंदगी में, इसमें कीमतों में कमी की जाए। जी फैसलाबाद जरावाला रोड जलवी मार्केट के दुकानदारों ने DIG कामरान आदिल के तजावुजात के खात्मे के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। रज़ाकाराना तौर पर तजावुजात ख़त्म करने पर CPO ने ताजिर बरादरी का शुक्रिया भी अदा किया। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया और फैसलाबाद पुलिस की जानब से शहर भर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन के पेश नज़र CPO फैसलाबाद, DIG कामरान आदल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम और दीगर पुलिस अफसरान ने जड़ावाला रोड जलवी मार्केट, अंजुमन ताजरान और रेडी चाबड़ी फ्रूट एसोसिएशन से मुलाकात की। इस मौका पर नून लीग के टिकट होल्डर मियां अरफान मनान, सदर अंजुमन ताजरान जलवी मार्केट परवेज कमुका, SP मदीना टाउन डिवीजन साद अरशद, DSP ट्रैफिक आसफ अवान, मुकामी दुकानदार और खांचा फरोशों की बड़ी तादाद मौजूद थी। CPO फैसलाबाद ने जलवी मार्केट के ताजरों और रेडी चाबड़ी फरोशों की जानब से अपनी मदद आप के तहत इंक्रोचमेंट ख़त्म करने पर मकामी ताजर तंजीम के ओहदेदारान के तावन और DSP ट्रैफिक आसफ अवान और उनकी टीम की काविशों को सराहते हुए कहा, क्या यूज़र फोल्डिंग करनी पड़ी, 2600 दुकानें कहना आसान है, अगर 5 दुकानें 10 दुकानें भी क्लियर करानी हो तो मसला बन जाता है। और ये सारा क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को जो इन्होंने हमें इज्जत दी, जिन्होंने हमारी इस प्रपोजल पे अमल दरामद किया और हुकूमत के एतबार और उनका ट्रस्ट का ये सबूत है, तो समझते हैं कि नेक नीयत से चीज़ें की जा रही है। DSP आसफ अवान ने कहा, ये रेडियाँ सारी रोड के ऊपर लगती थी, ये हमने 1-1.5 महीने की मेहनत से इनको पीछे फुटपाथ पे किया है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा मकसद है ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो। पुलिस अफसरान ने कहा कि फैसलाबाद की तमीर और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। शहर की खूबसूरती के लिए इंतजामिया के साथ ताजर बरादरी का तावन नागजीर है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़ फैसलाबाद। ओकाड़ा में पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत सफ़ेद पोश खानदानों के 75 जोड़ों की शादी कराई गई और कमिश्नर साहिवाल ने 9 बेहाते जोड़ों को हुकूमत की तरफ से 1-1 लाख सलामी दी। देखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खसूसी प्रोग्राम पंजाब दी रानी का इनकार बाईपास ओकाड़ा पर वाक़या निजी मार्केट में हुआ, जिसमें गरीब तबका
से तल्लक रखने वाले 75 जोड़ों की शादियां करवाई गईं। दूल्हे और दुल्हन खूबसूरत लिबासों के साथ शादी हाल पहुंचे। इज्तिमाई शादियों की तकरीब को न सिर्फ नए नवेले जोड़ों के वालिदैन बल्कि सिविल हम बहुत खुश हैं और मरियम नवाज का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम जैसे का ख्याल रखा और जिनके पास नहीं गुंजाइश है अल्लाह उनको ज़्यादा दे और पाकिस्तान जिंदाबाद मरियम नवाज। अच्छा हुआ है हमारे बेटे इजाज की शादी हुई है और मरियम नवाज जैसा कोई नहीं कर सकता जो उसने साड़ी गरीबों की मदद की है। ये गवर्नमेंट का वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बहुत सारी बेटियाँ जो हैं अपने घर को जा सकेंगी जहाँ पर इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि आजकल रिश्ते नहीं मिलते या और बहुत सारे प्रॉब्लम है, जहेज़ के बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और लोगों के पास फिनांस नहीं होता जिसकी वजह से बेटियों की शादियाँ नहीं हो पा रही। दी रानी प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत की जानिब से 1-1 लाख रुपए की कैश सलामी और 2-2 लाख रुपए मालियत का घरेलू सामान बतौर जहेज दिया गया। प्रोग्राम में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शबीर कुमार सैयद, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद समान जवेद, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राजा सिकंदर सुल्तान समेत सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से नए जोड़ों को कैश सलामी दी। प्रोग्राम का मकसद इज़्ज़त तकरीम के साथ गरीब बच्चियों की शादियां करवाना और उनका था। गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, 5 न्यूज़, उकाड़ा। सब बिल्डिंग शोरकोट के ऑफिस को ताले लग गए। मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें लेने लगे, जबकि बिल्डिंग सब ऑफिस में आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शहबाज अपनी इस रिपोर्ट में। सब बिल्डिंग शोरकोट के ऑफिस को ताले लग गए, जबकि सब बिल्डिंग ऑफिस के मुलाजमीन घरों में बैठकर मुफ्त तनख्वाहें लेने लगे, जबकि सब बिल्डिंग ऑफिस में आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो भी ग्रांट आती है वो खुर्द-बुर्द की जा रही है। जी, मैं आया हूँ यहाँ पे सब बिल्डिंग ऑफिस शोरकोट में। यहाँ पे ना कोई एहलकार मौजूद है, ना कोई इंचार्ज मौजूद है। बिल्डिंग को ताले लगे हुए हैं और जो भी सामान आ रहा है ग्रांट वगैरह हुकूमत की तरफ से उसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मेरी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ और डीसी जंग से अपील है कि फिल फॉर नोटिस लिया जाए और महकमे को जो है ना यहाँ पे नए महकमे को तैनात किया जाए ताकि ये जो घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं इनका सद्देबाब हो सके। शहरियों का कहना है कि सब बिल्डिंग के ऑफिस में आते हैं, यहाँ पर ना कोई एहलकार मौजूद है और ना ही कोई इंचार्ज मौजूद होता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर जंग से नोटिस लेने और अमले की तैनाती को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5, शोरकोट। FIA NCB इंटरपोल की कार्रवाई। इक़दामी कत्ल के मुकदमे में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम फ़ारान को ओमान से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट में FIA तर्जुमान के मुताबिक FIA NCB इंटरपोल ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। गिरफ्तार मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ इक़दामी कत्ल की दिफात के तहत थाना सदर पसरूर सियालकोट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम गुज़श्ता 1 साल से बैरून मुल्क फरार था। मुलजिम को बादशाह FIA इमिग्रेशन सियालकोट ने पंजाब पुलिस हुक्काम के हवाले कर दिया। फैसलाबाद में ट्रांसजेंडर स्कूल के फाइनल रिजल्ट में पोजीशन लेने वाले ट्रांसजेंडर में इनाम देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद पीपल्स कॉलोनी में किया गया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की इंचार्ज ने इनामात तकसीम किए। फैसलाबाद इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मदीहा इरशाद ने अपनी टीम के हमरा ट्रांसजेंडर के स्कूल पीपल्स कॉलोनी में फाइनल रिजल्ट की तकरीब में शिरकत की। फाइनल रिजल्ट में पोजीशन लेने वाले ट्रांसजेंडर्स स्टूडेंट्स में नकद इनाम, मेडल्स, ट्रॉफियां और तमाम स्टूडेंट्स में किताबें और कॉपियां भी तकसीम की गई। CPO कामरान आदिल की हिदायत पर इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मदीहा इरशाद ने ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीन दहानियाँ भी करवाईं। कसूर का इलाका बंद रोड कचरा कुंडी में तब्दील, नाले बंद, सेवरेज का निज़ाम दरहम भरम। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुकम्मल सफाई में नाकाम। बदबू और ताफुन ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में।
में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब के दावे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कसूर के इलाके बंद रोड की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होने लगी। इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर, बदबू और गंदगी ने मुकामी आबादी का जीना दोबर कर दिया है, जबकि बंद रोड और मुल्हक्का इलाकों के नाले सफाई ना होने से मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जिससे सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। इस हवाले से इलाका मकीनों का बात करते हुए कहना था कि LWMC को जो हज़ारों और करोड़ों का जो ठेका मिला है हमारे कसूर सिटी में, वो इधर जो काम का जो सिलसिला है वो बिल्कुल ज़ीरो है। क्योंकि ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल पीछे बिल्कुल नज़दीक बाईपास है, बाईपास के बिल्कुल नज़दीक जो सिटी को जो रास्ता जाता है ये बिल्कुल आगे शहर को टच करता है, इंडस्ट्री एरिया जो है वो साथ टच करता है। इधर जो सफाई का निज़ाम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अगर WMC को अगर हम रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं आप ज़िला कौंसल को रब्ता करें, ज़िला कौंसल कहते हैं वो कहते हैं MC को रब्ता करें। अगर हम तीनों से रब्ता करते हैं, तीनों कहते हैं इधर हमारा कोई तलक नहीं। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਬਰ ਬਸਤੀ, ਬਰੂਨ ਸਾਬਰ बस्ती, सारी रोड बाईपास। इलाका मकीनों का कहना है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई के इंतजामात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कचरा उठाने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से सेहत के संगीन मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर।